So shall we start? Because we have already told you that we will start at 1. So shall we start? Yes, sir. So those who wanted to join, they can come in between. So in the last lecture, I have given you one problem to solve. So we will discuss it later. Before that, I will we will solve 2 or 3 problems so that Sun Farm coding will be, you will get to know how to solve those questions. So one more problem I'm going to discuss in Sun Farm coding. So please take paper and pen and calculator with you. So that you can calculate it. So I'll write one more question for you. So suppose the probability will be given as P1 will be given as 0.35, 0.15, 0.20, 0.20, 0.10, and 0.20. So 50, 79. So this will be the question, and they are asking you to write the code words for these probabilities and assign the code words for this probability and calculate entropy, code words, and efficiency. So the question is clear to you. So probability is given as 0.35, 0.15, 0.20, 0.10, and 0.20. So is this clear to you? Yes, sir. Yes, sir. सर ये Social- क्वेश्चन है हाँ बताइए, आप सुनाई नहीं दिया मुझे अभी। मनोज बोलो। न्यू है या कल वाला है? क्योंकि सर कल वाले में सर 0.25 था एक नहीं नहीं, ये कल वाला क्वेश्चन नहीं है, अलग से क्वेश्चन है। कल वाला क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके सर। Okay, so we'll try to solve it. So first of all, our first step is we will write this in the descending order. So please help me in between. So what I will write here, I'll write here 0.35, then I'll write here 0.20, then 0.20, then 0.15, and then 0.10. So we can write like this. So after that, we have to do partition for those three. So how we will make a partition for those 5 values? So first Any 2 idea? bits and last 3 bits. First 2 bits and last 2. Kiran, my voice is not audible. My voice is audible or not? So everyone, please tell. Audible hai. Okay, so we will take first 2 bit. That will be, it will be close to, I think, 0.55, if you can say, and this will be equal to 0.45. That will be closest, I guess. So what I will write here, I will give here 0, 0, 0, and 1, 1, 1. Is this clear? How I have assigned those 0 and 1 value? Yes, sir. Okay, so now one more partition we can do in between. So I'll write here one more 0 and one more 1. So this will be, so now no need to touch this. This will be over. So this will be code word for 2 values. Now we will see these 3. So for these 3, we will take these 2 with us, and this will be single. So this will be 0.20 and this will be 0.25. So what I will write here? I'll write here 0 and then 1, 1. So is this clear? So after that, these 2's are left. So I'll write here 0 and 1. So what will be the code word for me? The code word will be 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. And what will be the NK value? Means total number. How we have to count the bit. This will be 2, this will be 2, this will be 2, this will be 3, this will be 3. Is this clear? I think problem is very simple. So please tell, is this clear how I have done that? Yes, sir. Okay, so now we will calculate H bar. So it's like one modification you have to do. Last class I have written I equal to 0. That will be I equal to 1 to M, and after that Pk log 1 by Pk. So
this will go. So since it is summation, so how much value it is there? 1, 2, 3, 4, 5. So I have told you. So I'll write here 0.35 log base 2 1 by 0.35 plus 0.20 log base 2 1 by 0.20 plus 0.20 log base 2 1 by 0.20. And after that I'll write here plus 0.15 log base 2 0 1 by 0.15 plus 0.10 log base 2 0.10. And when you will substitute those values in calculator, I have already told you, if you are finding difficulties how to calculate with the help of calculator, you can ask me personally. There is no problem, because किसी किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा आपको. So when you will put in the calculator, you will get, I think if you will put it, you will get 2.20 bits per message. 2.20 bits per message. So this will be H bar value. So now we will calculate N bar. So how to calculate N bar? N bar will be 0.35 into 2 bit 2 plus 0.20 into 2 plus 0.20 into 2 plus 0.15 into 3 plus 0.10 into 3. So when you will calculate it, I think you will get N bar as 2.25. So H bar you have got, N bar you have got. Now you have to calculate efficiency. So efficiency will be 2.20 by 2.25. It will be close to 97% into 100. So is this problem clear to you? If you are finding any difficulties, please tell in any step, so that four problem will be there. We will try to solve 4 more problems. Then I think Sanan Fun coding will be clear. So in any step you are finding any kind of difficulty? No, sir. So please take calculator. I am giving one more problem, and now I wanted that you solve me and tell me the code words and H bar and N bar. So I'll write this problem. So next problem which I'm going to give you, that has came in the RTU paper. So in your branch only. So from there I have taken. So I'm going to give you one more problem. So try to solve it by yourself. So the problem is like that. They have given you some probabilities. The probabilities was 0.16, 0.15 and 0.19, 0.40. I think this will be 59 and 15, 69, 74, and one more is 0.10, I think 0.10. If we'll add, this will come to 1. This should come to 1. So I think 9, 14, 20, 1, 2, 3. Okay, fine. So they have given you to assign the code words. First part was assign the code word. Second was calculate entropy. Third was calculate code length, that is N bar, and fourth was calculate efficiency, and fifth part was calculate code redundancy. Code redundancy, I will tell you the formula for code redundancy. That will be gamma equal to 1 minus whatever efficiency you are getting. That is code redundancy. So this 5 parts were there, and it was of 16 marks. So this one question carried 16 marks, and they are given like this. So please try to solve this question and tell me the answer. Please try to solve by yourself. The problem was given as the probability for those bits are 0.16, 0.15, 0.19, 0.40, and 0.10. They are asking you to assign the code word for each probabilities. After that, they had asked you to calculate the entropy for this probabilities. Then they had asked you to calculate the code length, that is N bar. Fourth problem was they are asking you to calculate efficiency, and fifth problem was code redundancy. So formula for code redundancy, I have given you gamma equal to 1 minus efficiency, whatever you are getting.
So if the problem is clear, please try to solve it. So if my writing you are not getting it, you can ask me. So what I have written. So actually this writing pad is very small, so I'm adjusting here. So because of that, the writing is becoming worst. So if you are not understanding in any point, you can ask me. So 18 participants are there, including me, 19 are there. So please try to solve it and tell me the code word for this. Sir, the code word is Please tell. 00. 1 second. I should know this. Code word is 00 00, 01, 01 10, 10 110, 110 111. 111. So everybody is agreeing with Avichal. I think Avichal has given the answer. So Sir. everybody has calculated. You are getting the same code word for this. Yes, sir. Okay, if everybody is getting that, no problem. I mean, Avichal is correct. So I think first part we have done it. So second part was there to calculate, I think, entropy. So if anybody has solved, please tell what is the entropy. Sir, very Entropy is Uh, 148 bits per message. what was, I can't hear. One more time, Komal. 2.148 bits per message. 2.148 bits per message. Okay. And code length and bar. But that thing I have to solve. Okay, calculate it and tell me. It is correct. 2.148. You round off. You can take 2.15. So it is correct, Komal. Avichal was also correct there. Komal has given the B part. Now I'm looking for N bar. So please try N bar. Sir, 2.25. 2.25. Very bits per good. message. Very good. Who is that? Sir, Vishwendra. Very good, Vishwendra. It is 2.25. 2.25. Yeah, correct. So I think Sir, everybody is efficiency, sir, 95%. okay. Efficiency is 95%. Vishwendra has given two answers, one N bar and one efficiency. And last is code redundancy. Code redundancy means how much less bit we are sending. So what I think that will be close to 5%. So we have saved 5% data. This means that. So I think we have solved this problem. So please tell me how many of you are not getting it till now, so that I can solve it for you. So if any problem is there, please tell me. If somebody is lagging or somebody is finding any difficulties to solve these questions, please tell me. Sir, code redundancy. 1 minus efficiency will be the code redundancy. Means 100 minus 95 you can do like this. So it will be close to 5%, means 5% data we have saved. Sir, 5% data or bandwidth? But same thing. We are saving the bandwidth only, na? How much less band. This is actually the part of source coding. So in less bandwidth, how much we can send more data. So you are correct. 5% bandwidth we have saved. Okay, sir. 5% means मतलब इतना जहां 100 रुपया लग रहा था हम लोगों ने 95 रुपये में उतना काम कर लिया. मेरा कहने का मतलब ये है. आप सही है, बैंडविड्थ हम लोगों ने सेव कर लिया 5%. So yeah, I think everybody is getting it. So is there any problem? खुल के बताइए. अगर किसी को दिक्कत है तो मैं फिर से बताऊंगा. साथ साथ चलना है अपने को. कोई ऐसा नहीं हो जाए पीछे छूट जाए.
Please explain one more time. Prakash Maurya. So I think everybody कोई है जो बताएगा प्रकाश को कैसे कैसे एक एक स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग? मैं बीच बीच में आपका हेल्प करता जाऊंगा. अगर आप समझाएंगे प्रकाश को तो ज्यादा उसको समझ में आएगा अच्छे से. कोई है ऐसा जो प्रकाश को? सो लेट मी राइट हियर. Yes, sir. प्लीज हेल्प मी. सो एक एक करके आप मुझे हेल्प करते जाइए ताकि प्रकाश को समझ में आए. सर उसका स्टेप 1 के अंदर हमारे पास जो एक्टिविटीज है उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. बहुत बढ़िया. तो यहाँ लिख देंगे 0.40. देन इन द नेक्स्ट स्टेप आई राइट हियर 0.19. in the next step I'll write here 0.16, 0.15, 0.10. Prakash, please see here, if you are finding any difficulties in any step, ask me. Stop me and ask me. So first step is we are writing in the descending order all those probabilities we have written in the descending order. Now we will divide into the two part. So I think this will be these two and these three are making a pair. Can anybody help me? सर स्टार्टिंग के 3 बना सकती है सर, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत मिनिमम रहेगा. स्टार्टिंग का 2 और ये तीनों में डिफरेंस हो जाएगा. ये तीनों एक साथ बन सकते हैं पेयर. तो इनको 0 दे दूं मैं, इनको 0 कर दूं और इनको 1 1 कर देता हूं. फिर इन दोनों में भी एक पेयर बनेगा. ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. इनका काम हो गया. प्रकाश, ये स्टेप समझ में आया आपको कैसे लिखा मैंने? ओके, तो ये खत्म हो गया. अब इन तीनों को देखते हैं हम. इन तीनों में अगर इसको अलग कर दे, इन दोनों को साथ कर दे तो एक पेयर बन जाएगा. तो व्हाट आई राइट हियर 0 1 1. फिर इसका काम खत्म हो गया. फिर यहाँ पे इन दोनों में देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 1. प्रकाश जी, ऐसे हम लोगों ने कोड असाइन किया है. अब बताओ आपको इसमें कहाँ समझ में नहीं आया? सर ये तो आ गया सर. ये आ गया. फिर दूसरा प्रॉब्लम करते हैं. आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग इट. सो नाउ वी विल सॉल्व सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. इससे आपको और आसानी रहेगा. 2 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हफमैन कोडिंग पढ़ेंगे. और आप लास्ट ईयर का पेपर खोल के देखिएगा, हर बार एक क्वेश्चन सनन फनन कोडिंग से होता है और एक हफमैन से होता है और लिख के आया होता है. तो कोई ना कोई आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा. तो अगर चीजें क्लियर रहेंगी तो ऐसा ये चीजें कभी रटना नहीं है. बस अपने को एक बार समझ लिए तो कभी भूलेंगे नहीं. हम कभी भी कोई आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा कि सोर्स कोडिंग क्या होता है. आपसे पूछा जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप किस में अच्छे हैं, तो आप बताएंगे कि आईटीसी है. तो उनसे आपसे सवाल पूछा जाएगा आईटीसी का क्यों पढ़ते हैं हम लोग. फिर उसमें सोर्स कोडिंग क्या होता है, चैनल कोडिंग क्या होता है, सोर्स कोडिंग किसके हेल्प से करते हैं, चैनल कोडिंग किसके हेल्प से करते हैं. जब ये चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगी तो आपको सब्जेक्ट में खुद ही फील आने लगेगा. सो नाउ वी विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम. So let me write one more problem for you. So the probability has given as 0.50, 0.0625, 0.0625, 0.0625, then 0.0125, 50, then one more 0.0125, then 0.3125, 0.3125. I think this is the same question. Yeah. So if you can add, 1 should come here to 50 और इनको जोड़ेंगे तो 25, 15. Okay. So this is the question. So ये आपके आया था 2014 के पेपर में. अगर आपके पास 10 ईयर का बुक होगा तो इसमें आप देख सकते हैं आईटीसी में 2014 में. So please try to solve this problem. 0.50, 0.0625, 0.0625, then one more. इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. वही चारों चीजें निकालनी है अपने को, सेम चीजें निकालनी है. तो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये आपके 2014 में आया था आईटीसी के पेपर में. अगर आपके पास 10 ईयर का बुक होगा तो आपको दिख जाएगा. ये सनन फनन कोडिंग के हेल्प से हमको कोड असाइन करना है. वी नीड टू असाइन कोड्स. आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड एंट्रोपी, कोड लेंथ एंड एफिशिएंसी. ये तीनों चीजें फाइंड करने को बोला था. I think problem is clear to you. Is there any doubt in problem? क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप.
सो आर यू सॉल्विंग इट? सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? सर हाँ, ओके. So please tell the code words. So what are the codes which we are assigning to these probabilities? एक से एक्सीड कर रहा है सम. सुमन बोल रही है एक से एक्सीड कर रहा है. सुमन फिर से देखो तो कैसे एक्सीड कर रहा है. मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए. ये हो गया 0.625 और ये कितना हुआ 0.25. अगर इसको लिखें हम 0.25 और ये कितना हुआ 0.125. एक से एक्सीड कर रहा है क्या? Yes, sir. क्या एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें? सर 1.35 वन क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? 1 पॉइंट. सर 1.45 किलो ज्यादा आ रहा है मेरे को. क्या हो रहा है? 0.25. ये 0.062. 0.0 है, ये ध्यान में रखना आप लोग. प्रॉब्लम मुझे देखना पड़ेगा एक बार तो कहीं से. 625. एक बार कैलकुलेटर में आप ऐड करके देखिए तो अगर एक्सीड कर रहा है तो जो पार्ट एक्सीड कर रहा है उसको रिमूव कर दीजिए. मैं एक बार Sir, कैलकुलेटर 0.38 एक्सेप्ट कर रहा है, 0.3875. तो एक उसको रिमूव कर दो आप. मैं एक बार प्रॉब्लम देख कैलकुलेटर में प्लस करके देखता हूँ. अगर जो पार्ट रिमूव एक्सीड कर रहा है उसको आप रिमूव कर दो. I'll add those values. 0.50, 0.125, 0.125, 0.0. ये 1 सेकेंड. आई शायद मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ. जीरो पॉइंट 50, 0.125, फिर 0.125, then we will write here 0.0625. ये 0.125 था. 0.0625, 0.0625, then 0.01 second, 0.03125, 0.03125. दो बार है तो अब नहीं करेगा. अब आप ऐड करके देखो इसको. ये प्रॉब्लम अब नहीं एक्सीड करेगा. अब 1 के बराबर आएगा. ये 0.125 है, 0.125. ये फिर 0.0625, 0.0625, 0.0625, then 0.03125, 0.03125. Now it will be equal to 1 if you will add that. अब करिए, अब बराबर आएगा. प्लस 0.0625 0.03125 प्लस 0.03125. अब नहीं आएगा. अब 1 के बराबर आएगा अगर आप जोड़ोगे तो. 0.125 0.125 0.0625 0.5 0.03125 0.031. Yes, sir. 1 के इक्वल है. हाँ, 1 के इक्वल है. तो अब इसको सॉल्व करके आप कोड वो बताओ. तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके पेपर में. अगर ये आप लोगों ने लगा लिया तो फिर मुझे भरोसा हो जाएगा कि आप लोग प्रॉब्लम लगा लेंगे कोई भी.
सर मेरे कम आ रहा है 1 नहीं मनोज, तुमने कहीं गलती किया होगा। प्रॉब्लम बाकी 1 ही आएगा। ये 0.50, 0.125, 0.125, 0.0625, 0.0625 एंड 0.0, ये पॉइंट जीरो लग जा रहा है। ये पॉइंट आगे जीरो है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। इसलिए आप लोग का गड़बड़ आ रहा है। इसको Yes, जीरो है, yes. ये जीरो है, ये भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है। डायरेक्ट इसको जोड़ोगे तो 0.25 आ जाएगा। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.0625 होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इसके इक्वल होगा। एक बार आप कैलकुलेटर में डालो, ये प्रॉब्लम गलत नहीं है, ये सही प्रॉब्लम है। 1 के करीब है, वो एकदम एग्जैक्ट 1 आएगा ये। राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये अगर आपने एफिशिएंसी एंट्रोपी बताया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये 2014 के पेपर में था आपके, और ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है सर कोडिंग में। तो पहला था 0.50। सर कोडिंग तो हो गया। हाँ, क्या था कोड वर्ड, क्या मिला आपको? सर 0 जीरो, फिर 1 0 1 0, 1 1 1 1, 1 1 0 1 1 0, 1 1 1 1 फिर 1 1 0। 1 1 0। ओके, यस सर। सबको मिल फिर रहा है? 4 टाइम 1 0। 4 टाइम 1 0, 4 टाइम 1 यस 4 सर। 0, 4 और टाइम फिर 1 5 टाइम 1। 5 टाइम 1 0। कोडिंग कोड आना चाहिए आपका 0। ये आंसर आना चाहिए आपको, मैं बता रहा हूँ आंसर ये आना चाहिए 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1, then 1 1 0, after that 1 1 1 1 0, then 5 टाइम 1। ये होगा आंसर जो मैंने लिखा है अभी। अभी सॉल्व करके देखेंगे, अगर जिसका नहीं आया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये करेक्ट आंसर है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये जिसका आ गया, अगर आप बोलेंगे तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ये जो जिसका आया है वही करेक्ट है। कौन? कोमल का आ गया? आपका आ गया कोमल? सेम आंसर? यस सर, यस हाँ सर। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम भी सही है और आंसर भी, क्योंकि ये आंसर होना चाहिए। अभी चला आपने ये गलती किया होगा, देखो कोमल क्या किया आपने, 0.50 को अलग कर दिया होगा और बाकी एक पेयर बना होगा, सबका एक पेयर बना होगा। यस सर। हाँ, एक अलग हो गया होगा, फिर इन दोनों में 2 बना होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 बना होगा। यस सर। इसी में अविचल ने गलती कर दिया है, यहाँ पे एक और बार पेयरिंग होगा, एक बार और पेयरिंग होगा। मैं करके बताऊं अगर किसी को दिक्कत है तो? किसी को भी दिक्कत है तो डाउट मत रखिएगा, मैं फिर से करके यहाँ दिखा दूंगा। एक बार खुद से कोशिश करिए, अगर दिक्कत हो। एक आदमी का आंसर सही आ गया है, मतलब आंसर क्वेश्चन इजी है, कर सकते हैं। If somebody has any doubt, please tell me. I'll try to solve it for you. Same answer. Hemu has also got same answer. यस सर, अब आ गया सर। अब आ गया। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो कोमल एंड अविचल एंड हेमू, प्लीज ट्राई टू गिव मी द सेकंड पार्ट, h bar. What is the entropy you are getting? If you have calculated this, you will calculate easily entropy. अब एंट्रोपी बताइए, कोड लेंथ बताइए, एंड एफिशिएंसी, कोड रिडंडेंसी, चारों चीजें बताइए मुझे। सर मुझे ये नहीं आया सर कोड वाला। ये आपको नहीं आया? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार, अगर जिसको भी दिक्कत हो आप एक बार देख लो।
मैं आपको एक दो स्टेप बता दूंगा, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में विश्वेंद्र बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, हेल्प करो मुझे। यहाँ क्या लिखेंगे? सर 0.50, हाँ 0.50, देन आगे 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, देन 0.625. 0.0625, Yes, sir. 0.0625, देन 0.031। 0.065. ये स्टेप, हाँ ये स्टेप में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये आई थिंक somebody is waiting in the lobby, I should add them. So Gunjan, your class was from I think 1 o'clock. You are attending at 1:30, so I will not mark your attendance. So see, if you can see here, इसको अलग कर दीजिए और बाकी को अलग कर दीजिए, सब इनके बराबर ही आएगा। तो अगर इनको मैंने क्या किया, अगर इनको जोड़ोगे आप तो 0.50 के बराबर ही आएगा। तो इसको मैंने क्या असाइन किया विश्वेंद्र, देखो यहाँ पे 0 दे दिया इसको, बाकी 1 1 1 1 1 1 1। ये स्टेप क्लियर है विश्वेंद्र? Yes, sir. फिर देखो इन दोनों में, Yes, हाँ फिर कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको, ये बताओ मुझे, किस स्टेप में दिक्कत हो रहा है आपको? सर अब इसके नेक्स्ट स्टेप में सर क्या करेंगे सर? इसके सर next- 0 मतलब 1025 और 1025 दोनों 0 हो जाएगी, बाकी 1 1 1 1। ये अब ये दोनों और ये सब एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों और ये सब एक साथ हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, 0 0 बाकी 1 1। क्लियर है? फिर इन दोनों में भी एक पेयर बनेगा, यस सर। इन दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा 0 1। ये स्टेप क्लियर हो गया? सर आप क्या हाँ इन दोनों में भी तो एक पेयर बनेगा, इन दोनों में भी एक पेयर बनेगा, अगर आप देख रहे होगे तो। ये तो यहाँ पे 0 और 1, भाई ये Yes, क्लियर हो yes, गया, yes, sir. ये क्लियर हो गया आपका। अब इसमें देखो आप, अब इसको खत्म कर दो। अब इनमें देखो आप, इनमें कौन कौन सा एक साथ ले सकते हैं, ये दोनों एक साथ ले सकते हैं, इन तीनों को एक साथ। आप इसके अंदर इन दिस यू कैन सी इफ वी कैन मेक 2 पेयर ऑफ दिस एंड 3 पेयर ऑफ दिस। सो व्हाट आई विल राइट हियर, नाउ इट इज ऑडिबल। हाँ सो कनेक्टिविटी इशू है, अगर आप देखो, मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ फिर से। तो अगर आप देखो वी विल मेक दिस 2 पेयर एंड दिस 3 पेयर बन जाए, ये दोनों को एक साथ ले लो, इन तीनों को एक साथ ले लो। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 0 0 फिर 1 1 1, फिर इन दोनों में एक बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 1। ये खत्म हो गया। एक बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिए आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ये स्टेप अगर समझ में आ गया तो प्रॉब्लम फिनिश हो गया। फिर ये आप इन दोनों को एक पेयर बना लो, इन तीनों को एक पेयर बना लो। तो यहाँ से क्या लिख दिया मैंने, 0 0। नाउ सबको आवाज सुनने में दिक्कत हो रही है? हेलो, अभी नो आवाज सर, क्लियर है आपकी वॉइस। हाँ तो अभी आप विश्वेंद्र आपको हाँ तो आप देखो इन दोनों को एक पेयर बनाओगे, तो यहाँ पे 0 0 डाल दिया मैंने और बाकी तीनों 1 हो गया। फिर ये दोनों भी तो एक साथ जाएंगे, तो यहाँ पे 0 और ये 1, फिर इन तीनों को सॉल्व कर लो आप, खत्म हो गया प्रॉब्लम। समझ गया कैसे बोला लिखा है मैंने इस चीज को? विश्वेंद्र आपको क्लियर हुआ ये चीजें कैसे लिखा है मैंने, ये 0 1 कैसे लिखा है, इस चीज को कैसे लिखा है? ये स्टेप ही बस मायने रखता है, ये होते ही आपका प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। सो प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी यू आर गेटिंग? हाँ विचल प्लीज टेल। सर 2.31। हाँ वेरी गुड, 2.312।
बिट्स पर मैसेज एंड Zero. ड्रॉप। 3 हाँ 2 ये 5 हाँ ये बहुत बढ़िया, ये सही है। और ये कोड लेंथ एंड वैल्यू, आई थिंक 2.2. same value you are getting 2.3125, same value. So efficiency will be 100%. So this is the, 100%. हाँ this is the problem which we are getting. So ये problem 2014 में आया था, तो अगर ये सॉल्व हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ वन, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज करे तो एक क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/8, 1/8। अगर ऐसे आता है प्रॉब्लम और बोलता है साइन फॉर्म कोडिंग से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे इसको? किसी के पास आइडिया है? सर इसको 1/2 को लिखेंगे 0.5. हाँ इसको बहुत बढ़िया। 1/4 अब को ऐसे 0 जीरो, इसको कैसे कर, डिवाइड करके और फिर 0.50, 0.25 और ये कितना 25 0 0.125, 0.125, 0.125 बस हो गया। 125. हाँ बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसे भी प्रॉब्लम आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को डिवाइड करके ब्रेक करके ऐसे लिख देना। फिर अगर इस स्थिति में लिख दिया हम तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, यहाँ पे ले आए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो आप मेरे ख्याल से साधारण फाइनल कोडिंग सबको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो यू कैन पर्सनली कॉल मी, आप मुझसे पूछ लीजिए, आप नोट्स में लिख के भेजिए, मुझे फोटो भेजिए कि सर इस स्टेप में, इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको कॉल करके दोबारा से समझा दूंगा। अगर किसी को भी अभी भी दिक्कत आ रहा है तो आई थिंक एनीबडी इज एनी डाउट इन साधारण फाइनल कोडिंग? इसी के साथ हम खत्म कर दिए इसको। हाँ ठीक है विश्वेंद्र, आप आपका नेटवर्क इशू, आप लीव हो जाइए, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे बात कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इशू भी आ रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी। कल हम लोग बात करेंगे हफमैन कोडिंग के बारे में। सो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट हफमैन कोडिंग। सो आई थिंक 18 people are there, so please everybody, I have asked Komal to give me the attendance by making a PDF. So she will make a PDF of attendance. So every day I'll record those attendance. So अब जो लोग नहीं आ रहे हैं किसी कारण से, उनको बता दीजिएगा, उनका कोर्स तो छूटेगा ही छूटेगा, और अगले साल फिर आईटीसी देंगे वो, क्योंकि मिड टर्म में मैं पास होने नहीं दूंगा अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। So that is all for today, and tomorrow we will meet. I will tell you the timing. अगर जब भी कल अपने स्लॉट में या कभी भी मैं आपके सीआर को इन्फॉर्म कर दूंगा उसके पहले। So thank you for today. So tomorrow we will meet and we will see what is Huffman coding. कल Huffman coding के बारे में देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे हम लोग। So thank you everyone. Okay, thank you IMC. So please leave the meeting.